students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. So here I have started mathematics lecture series for exercise 1.3. Exercise 1.1 and 1.2 is already uploaded on the YouTube channel. So जाके देख सकते हो वो वाले. This is the question number first of 1.3. Make correct statement by filling in the symbol subset or not a subset in the blank space. So for the first one, हम देख सकते हैं कि इस सेट के जो मेंबर्स है, सो 2 3 4 एंड दीज आर आल्सो मेंबर्स ऑफ दिस सेट. 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है और 4 भी इसमें है. सो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? सबसेट का. सो दिस इज द सबसेट. ठीक है. सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. फॉर द सेकेंड वन, ए बी सी, clearly we can see B and C are the member but A is not member of this set. That's why it is not a subset. It is not a subset of this set. Here it is in the set builder form. X is the student of 11th of your school and this X is the student of your school. So this set is bigger than this and this contains all students of your school and these are only 11th standard students. So this one is the subset. Actually यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए स्कूल की जगह. So this one is the subset of this set. X is the circle in the plane, collection of all circles in the plane, this set है ना. And this set is the collection of all circles in the same plane but with radius 1. So this set is smaller. So this one यूनिट वाले जो 1 यूनिट रेडियस होगा उस वो वैसे वाले सर्कल है. तो दिस वन इज द सबसेट. दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. या फिर सिर्फ अगर ये दो साइन फिलअप करना है तो हम क्या करेंगे? इट्स नॉट द सबसेट. ठीक है. इन दोनों में से ही देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे उतना ही पूछे कि फिल दे अमंग दिस टू ओनली. सो दिस सेट X is the triangle in the plane. This is the collection of all triangles in the plane. And X is the rectangle in the plane. Whether triangle is equal to the rectangle, this is the basic question. This is not possible. So this is the subset of, not the subset of this because this contains triangle, this contains rectangle. No relation. X is an equilateral triangle in the plane. Equilateral triangle in the plane and this is again same rectangle in the plane. So ये भी क्या होगा? सबसेट नहीं होगा. ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. तो यहीं पे बात खत्म होती है. तो ये इसका सबसेट होगा नहीं. Now this one, x is an even natural number. So even natural number कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 4 एंड सो ऑन वैसे चलते जाएगा नेचुरल नंबर. बट x इज एन इंटीजर. यहाँ पे x इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है. दैट मीन्स दिस सेट इज नथिंग नन अदर देन सेट ऑफ इंटीजर and this set is collection of all even natural number. Since every even natural number is an integer, this one is the subset. तो यहाँ पे ये इसका subset होगा. Now this is question number second. Examine whether the following statements are true or false. Which of the following statements are true or false? Now see the first one. A and B are the member of this set. Order doesn't matter in the set. तो A and B are the member of this set, but यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये not a subset. So this statement is false. यहाँ पे मैं सिर्फ F लिख लेता हूँ. ठीक है. जहाँ पे true है वहाँ पे T लिख लेता हूँ. I hope you understand this. A, E, these are two alphabets. Okay, and this set contains vowels collection. This set is none other than A, E, I, O and U. है ना. There are 5 vowels. तो यहाँ पे A और E इसके मेंबर है. That's why this one is the true statement. यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? True. This second is true. For third one, 1 2 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 3 5 है. 2 is not a member of this set. That's why this one is the false.
For the fourth one, singleton A is the subset of this set. Yes, A is the member of this set, so this one is the true. तो ये क्या है, ट्रू होगा. एंड द फिफ्थ वन, सिंगलटन ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू साइन है, ठीक है, यहाँ पे सबसेट का साइन है. बिलोंग्स टू मतलब क्या, बिलोंग्स टू और सबसेट में यही डिफरेंस होगा कि ये जो मेंबर है, ये पूरा जो एलिमेंट दिख रहा है ये इसमें होना चाहिए. इसमें ऐसा एलिमेंट दिख रहा है क्या, ये एलिमेंट है क्या इसका, नहीं है. ये इसमें है बट ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, तो एलिमेंट डज नॉट बिलोंग, दैट मींस इट इज फॉल्स. तो ये क्या होगा, फॉल्स. ओके, सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th. क्वेश्चन नंबर 3rd है, लेट a इज इक्वल टू दिस 1 2, एक सेट है दैट इज द एलिमेंट ऑफ दैट a, which of the following statements are incorrect and why. So first statement है 3, 4 is the subset of a. अब ध्यान से देखो, 3, 4 is the element of that set a, means this statement is correct that 3, 4 is the element of that set a, belongs to that set a, but 3, 4 is not subset of a, that's why it is incorrect. And why? Reason is 3, 4 is the member of that set, not a subset. For this one, थर्ड में आपको ये क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे डबल ब्रैकेट दिया है ना, तो that is the member of that set. Set is the subset of that set. This is the element and this is the set. तो सबसेट की जहाँ भी कंसेप्ट आएगी वहाँ पे हम सेट के ही बारे में बात करेंगे. तो सब दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. बट ये करेक्ट नहीं है. वन बिलोंग्स टू दैट सेट ए, वन इसका मेंबर है, बिलोंग्स टू दैट मीन्स एलिमेंट है, तो ये करेक्ट है. वन इज द सबसेट ऑफ दैट सेट ए, दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड व्हाई? सिंस वन इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट ए, वन इज नॉट अ सेट. वन क्या है, सेट नहीं है. ऐसे अगर सिंगलटन वन अगर ऐसे लिखते तो दैट विल बी द सेट, बट ऐसे नहीं यहाँ पे, तो ये सेट नहीं है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. यहाँ पे देख सकते हो 1 2 5, 1 इज द मेंबर, 2 इज द मेंबर, 5 इज द मेंबर, दैट्स व्हाई दिस वन इज द सबसेट. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फॉर 7th वन, 1 2 5, 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए. ऐसा पॉसिबल है क्या, दिस वन इज नॉट एलिमेंट. तो यहाँ पे अगर ऐसे होता कि 1 2 5 अगर और एक मेंबर होता है इसी टाइप में, एलिमेंट होता तो बिलोंग्स टू लिख सकते थे, बट ऐसे नहीं है. तो ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट. और रीजन क्या होगा, 1 2 5 आर नॉट मेंबर ऑफ, सॉरी 1 2 5 मेंबर तो है बट ये सेट क्या है, एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे बिलोंग्स टू साइन है ना, तो एलिमेंट नहीं है. 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 इसका मेंबर ही नहीं है, तो ये अलग से एक एलिमेंट मान लो, कोई एक एलिमेंट ई है, तो 1 2 3 है यहाँ पे, और 2 3 एक सेट है, 3 3 4 एक सेट है, ये सेट का मेंबर नहीं. तो 1 2 और यहाँ पे 3 कोई अगर मेंबर होता तो ये सबसेट, ये सही होता. तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट. वाई? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये रीजन होगा इसका. 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, दिख रहा है क्या, नहीं. ये 3 4 इसे कंसिडर मत करो इसे, ठीक है. 3 मेंबर नहीं है, एक एलिमेंट है ये. 5 बिलोंग्स टू ए, दिस इज अगेन रॉन्ग. 5 इज द सेट और ये एलिमेंट का साइन है, तो 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. यहाँ पे ऐसे 5 मेंबर है क्या, इसमें ऐसे दिख रहा है क्या, नहीं. तो एलिमेंट नहीं है तो ये बिलोंग्स टू साइन भी यहाँ पे नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा. सिंस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, रीजन दे सकते हो. 5 इज द सबसेट ऑफ ए, करेक्ट. वाई? क्योंकि मैंने थ्योरी लेक्चर में नोट लिख के दिया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, तो ये सबसेट होगा इसका. और सिंगलटन 5 इज द सबसेट ऑफ ए,
ये भी गलत है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होगा, क्योंकि सिंगलटन फाई इसका सबसेट है, मतलब फाई बिलोंग्स टू दैट ए होना चाहिए, एंड ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग ही होगा, इनकरेक्ट है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, क्योंकि हमें पता है फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, तो फाई इसके लिस्ट में आएगा। मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, फाई इसके सबसेट में आएगा। सिंगलटन ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी इसमें आएगा। तो फाई और दिस, ये दो ही क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। इसके लिए देखो, फाई तो होगा ही होगा, सिंगलटन ए इसका सबसेट होगा क्योंकि ए मेंबर है इसका, कॉमन सिंगलटन बी, ये भी उसका सबसेट होगा क्योंकि बी भी क्या है, बी बिलोंग्स टू दैट सेट, और ए कॉमा बी ये भी खुद क्या होगा, तो इसके टोटल 4 सबसेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट की हमने कार्डिनलिटी देखी थी 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2 4 एलिमेंट इसमें है, 2 टू द पावर 1 2 एलिमेंट इसमें है, इसमें कितने होने चाहिए, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट इसमें आने चाहिए। तो फाई एक आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, देन सिंगलटन 3 आएगा, देन 1 2 आएगा, देन सिंगलटन सॉरी 2 3 आएगा, देन 1 3 भी आएगा, और 1 2 3 ये खुद भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल एलिमेंट 8 है इसमें। अब ये फाई देखो, इसका सबसेट सिर्फ और सिर्फ फाई एक सिंगल एलिमेंट होगा। This set does not contain any element since it has cardinality 0, that means it contains 0 element, उसमें element ही नहीं है। तो 2 to the power 0 that is only 1 and this is only 1 element in this, और ये क्या है, 5 ही है। So that's it. So this is question number 5th, 6th and 7th. Question number 5th 5 जो है उसमें क्या है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इंटरवल्स दिए हैं, और इसके बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6, इंटरवल दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल फॉर्म। सो दिस is strictly less than, that's why this side is open, this point is not included, so -4, and for this one this is less than or equal to, that means 6 is included, means 6 is the member of that interval, so -4 at open, 6 at close, तो ऐसे ही ये इंटरवल आएगा। फॉर दिस वन स्ट्रिक्टली लेस देन, so -12 ओपन इंटरवल, -10 ओपन, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। फॉर दिस वन क्लोज एट 0, बिकॉज 0 इज द मेंबर, 0 इसमें है, 0 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, और 7 इज नॉट अ मेंबर, दैट्स व्हाई इट्स ओपन एट दिस एंड। लेस देन और इक्वल टू के लिए हमने थ्योरी लेक्चर में ये वाला पॉइंट डिस्कस किया है, ये सब डिस्कस किया है, तो आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हो। x belongs to set of real number less than or equal to, that means close at both end, so this is 3 to 4 this interval, ठीक है। I hope you understand this. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इंटरवल दिए है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसी टाइप में हम लिखेंगे x belongs to set of real number and -3 is less than x is less than 0, तो strictly less than यूज किया है बिकॉज ओपन एट बोथ एंड मींस -3 इज नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट, 0 इज आल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। यहाँ पे 6 भी है 12 भी है, तो दोनों मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज एट बोथ एंड, दैट मींस 6 is less than or equal to x is less than or equal to 12, and for this one open at one end, x belongs to set of real number, 6 is less than strictly, है ना, x is less than or equal to 12, open at this close at this set, 12 is the member of that set. Similarly for this one x such that x belongs to R, आप इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। -23 is less than or equal to
x is strictly less than 5. And this is question number 7. What universal sets would you propose for each of the following? The set of the right triangles. इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है ये पूछा है यहाँ पे, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है. तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स अगर करोगे दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स भी क्या करेंगे उसके मेंबर्स होंगे, एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर आल्सो मेंबर ऑफ दैट सेट. तो यहाँ पे दोनों के लिए, इन दोनों एग्जांपल के लिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. ये जो है सेट, तो ये वाला सेट क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, यूनिवर्सल सेट. Okay, I hope you understand this question number 5th, 6th and 7th. Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel Math Buddy.